ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ स्माइल आ जाती है। गुस्सा भी आ जाता है। बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैगी है। मैं आपको 2-3 साल पीछे ले जाना चाहता था जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त भी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये लोग देश के गद्दार हैं, ये 100 रुपये लेकर जो औरतें हैं वो प्रोटेस्ट में जा रही हैं। आप क्यों मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं उस चीज़ में जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है? यस कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट काफ़ी बार दी हैं, बट वो किस बेसिस पे कह रही हैं वो अभी तक उन्होंने कुछ क्लैरिटीज़ पे दी नहीं है। अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो उनको बताना भी चाहिए, अगर वो सच बोल रही हैं तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर शुरू होता है उनका फेज़ 2। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1-2 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਔਨ ਕੈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਚੈਟ ਔਨ ਕੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਆਡੀਅੰਸ ਔਨ ਚੈਟ ਔਨ ਕੈਮ। ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਸਮਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਲੈਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। मतलब एज ए आप बोल रहे हो कि एज ए एक्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो? हाँ, एज एन एक्ट्रेस ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰੈਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟॉकिंग अबाउट एक्टिंग वो तो हो जाती है ना भी पर्दे पे जो नज़र आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में हम कुछ आपको ही पता है जैसे भी कैसी स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप। कमल ऐसे रहा है कि कंगना रनौत का अगर हम नाम लेते हैं तो उनकी मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ ही एक फ़िल्म है। अगर आप उनकी गूगल पे स्टडीज़ करोगे या फिर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे, वो बड़े ओपनली हर चीज़ को उन्होंने अपने लाइफ में रखा है। और उनकी लाइफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड भी करती है और कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के बारे में बताती भी हैं कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था अभी गूगल पे और कुछ एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो मैंने देखा उनको कोई वो कैसे हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी कैसे लाइफस्टाइल रही है, वो उनके पेरेंट्स कैसे थे। बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एक ऐसी फैमिली में बर्थ लेते हैं या ऐसी फैमिली से कनेक्टेड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशलाइट होती है और वहाँ पे ओवरऑल एनवायरनमेंट रहता है, और उसके बाद अब कंगना रनौत को आप जानते हो कैसे उन्होंने मूवीज़ की हैं, कैसे बोल्डली उनकी एक पर्सनालिटी बनी है पर्दे पे। तो उस टाइप की पर्सनालिटी को कैरी करना उस जगह पे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए भी। अगर आप उनकी स्कूलिंग देखते हैं, स्कूलिंग उनकी देहरादून से हुई है, उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए शिमला हिमाचल प्रदेश गई, फिर उसके बाद वो दिल्ली गई, वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, मॉडलिंग की। तो ऑब्वियसली जैसे एज़ एक्सपेक्टेड आप किसी छोटी जगह तो नहीं कहूँगा, बट आप एक ऐसी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक ऐसी सोसाइटी से रिलेट होते हैं जहाँ की एक पेट थिंकिंग है
कि अगर कोई लड़की है तो उसको ये प्रोफेशन उसके लिए सेट कर दिए जाते हैं, मतलब दीज आर दी सुटेबल प्रोफेशन फॉर दी फीमेल। बट उन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, अपनी ज़िद के सामने कैसे चीज़ों को मनाया, वहाँ तक उनकी जर्नी बहुत इंस्पायर्ड रही है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी वहाँ तक ठीक है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया। और बॉलीवुड जैसी जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो और किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेशन रखते हो या ताल्लुक़ रखते हो, तो अपना लोहा मनवाना वाकई में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि कदम है और बहुत बड़ी सफलता है उनके लिए। सर इट्स जो आपने अभी तक बताया ना, मेरे को लग रहा है वो आपने उनकी एक तो बहुत मेरे को अच्छी बात लगी ना, ट्रू फैन। इट्स नॉट अबाउट कंगना रनौत भी, अगर आप किसी के फ़ैन है तो आपको उसका पता है भी उसका जन्म कहाँ हुआ है, क्या उसने स्टडी की है, कैसे इट्स अच्छी बात है। मतलब मैं इसको ये नहीं कह देता इट्स नॉट अबाउट कंगना रनौत। कोई भी हो अगर फ़ैन हो तो ऐसा होना चाहिए। वैसे मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि यू आर कंगना रनौत फ़ैन, फिर आप कहोगे ना भी दो चीज़ें हो जाएंगी, वी आई एम फ़ैन ऑफ हर वर्क। नाउ व्हाट अबाउट हर स्टेटमेंट्स? देखो मतलब आपको लगता है भी जो आर्टिस्ट होता है वो तो हर एक का होता है, मतलब उसको हर एक, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल, तमिलनाडु, केरला, हर एक ने देखना है। आर्टिस्ट इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट जब वो फिर ऐसे पर्सनल मैटर्स में किसी स्टेट के जब घुसने लग जाता है तो मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा भी। उसके बाद जब आपने कहा बॉलीवुड में तो एक नाम बन गया, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी ट्वीट्स कुछ ऐसे करने स्टार्ट कर दिए, फिर उनके पॉलिटिकल सर्कल जो स्टार्ट हो गया, इस पर आपका क्या है? देखो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ चीज़ों को कि ये कॉन्सेप्ट लोगों में कैसे बना। अभी तक की जैसे हमने जो डिस्कशन की, उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, सब कुछ किया है ना, और उसके बाद वो अपनी फर्दर जर्नी वो के लिए अपनी जैसे उनके ड्रीम्स थे उसके लिए वो मुंबई गई। ठीक है, तो अब उनका देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि उनको किसी बड़े डायरेक्टर ने कॉफ़ी पीते हुए देखा, उनके हेयर स्टाइलिंग बड़ी यूनिक थी जिसकी वजह से उनको मूवी का चांस मिला, है ना, और सारी चीज़ें की। बट अभी मैं रिसेंटली एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था उनके इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने बताया कि दीज आर ऑल द पब्लिसिटी स्टंट डिज़ाइन बाय सम PR फर्म जी। ठीक है जी, टू लॉन्च द कंगना रनौत, टू लॉन्च द कंगना रनौत, यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रॉपर अपने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, उन्होंने एक हार्ड वर्क किया, उन्होंने ऑडिशन दी है जिसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी। उसके बाद फिर वो उनको एक्टिंग में किसी और उनको रिप्लेस करने के लिए कुछ एक दूसरी एक्ट्रेस थी, पर फॉर्चुनेटली उनके साथ उनका उस बड़ी अदाकारा के साथ वो मूवी में नहीं आ पाई, और ये मूवी थी गैंगस्टर, जिसमें आप सभी जानते हैं इमरान हाशमी के, और बहुत अच्छे से उन्होंने रोल किया था। कंगना को उसमें चांस मिला काम करने के लिए। 2006 की बात है, मेरे को लगता है 6-7 क्या, शायद 2006-7 के आसपास, 2006 की बात आई गेस। तो वहाँ से कंगना की शुरुआत होती है बॉलीवुड में, और उसके बाद आप देखेंगे उनकी बैक टू बैक मूवीज़ आती हैं, और हर मूवी उनके लिए एक सफलता की सीढ़ी साबित हुई है। चाहे वो आप उनकी मूवी क्वीन ले लीजिए, चाहे तन्नू वेड्स मन्नू ले लीजिए, चाहे आप उनकी पंगा ले लो। तो लेकिन पंगा ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम नहीं किया, पर सर उनके लिए अब इन नेशनल अवार्ड आई थिंक मिल गया उनको। मेरे को श्योर नहीं है कि पंगा के लिए मिला कि नहीं मिला। मुझे जहाँ तक लगता है कि 22 साल की उम्र में उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया था, और वो सबसे यंगेस्ट अवार्ड आई मीन ऑनर्ड गर्ल थी, जिनको सबसे ज़्यादा वो एक्ट्रेस थी जिनको वो अवार्ड मिला। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़, नहीं नो डाउट, है ना। तो इसके बाद वो और चीज़ें करती गई, फिर शुरू होता है उनका फेज़ 2। इंटरवल के बाद की कहानी अब बताओगे? इंटरवल की कहानी यहाँ शुरू होती है। कंगना एक बहुत बड़ी अदाकारा बन चुकी हैं, बॉलीवुड में इनका मकाम है, एक लंबा चौड़ा फ़ैन बेस है, एक उनकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। कंगना रनौत आएगी तो एक बोल्ड रोल करेगी। एग्जैक्टली, बोल्ड, इट्स नॉट अबाउट बॉडी, और इट्स अबाउट ए फ्रीडम टू स्पीक, और अबाउट फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर। नॉट एग्जैक्टली फ्रीडम टू स्पीक, मतलब कि जस्टिफाइड विद हर करेक्टर। जो करेक्टर होगा उसको
कुछ रैप अप करके नहीं, खुल के सामने। आप शायद थोड़ा सा अपने वर्ड को, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं आप। जी जी, नहीं नहीं, अब शायद मुझे लग रहा है कि बोलना कुछ और चाह रहे हैं। अपने वर्ड बोलो ना, बोल्ड। बोल्ड में अगर हम सीधी सी बात समझे ना, वो होता है ना भी मतलब उस तरह के कैरेक्टर हो गए जैसे इंटरमीडिएट सीन्स होते हैं। बोल्ड को होता है कि अपनी बात, मुझे मतलब बोल्ड का मेरे को यहाँ पे मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, बोल्ड जो करेक्टर को उसको 100% जस्टिफाई करना। ठीक है जी, ठीक है। एक करेक्टर है वो अगर माँ बहन की गाली भी देता है तो उसको रैप अप नहीं करना, वो उनको बताते हैं कि करेक्टर को सच्चाई को दिखाना उस करेक्टर की, तो उस करेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। तो अब उनका शुरू होता है एक फेज़ 2 जिससे कंगना रनौत एक अलग एक ऑरा में एक अलग डिकेड में एंटर करती है, यू कैन से। ठीक है। कंट्रोवर्सीज, ठीक है, कंट्रोवर्सी शुरू होती है। उन्होंने कई बड़े बड़े अखबारों को इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर आप उनकी IMBD और बड़ी बड़ी साइट्स पे पढ़ सकते हैं कि उनका अफेयर रहा किसी बड़े आदित्य पंचोली के साथ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये तो न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ है, आप इसको नहीं छिपाइए। आदित्य पंचोली के साथ, बट ड्यू टू देयर एज गैप नहीं कह सकते आप, एज गैप भी मे भी शायद हो सकती हैं चीज़ें। उसके अलावा फिज़िकल अब्यूज़ किया गया उनको, है ना, उनको जैसे कि बताया जाता है। ये कंगना रनौत की इंटरव्यूज़ हैं, मतलब ये उनका ओपिनियन है। मे बी वो गैप हो सकता है, मे बी उनको फिज़िकल अब्यूज़ किया गया वहाँ पे, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद जो दूसरा किस्सा है वो तो सर ऋतिक रोशन है ना। बट ऋतिक रोशन साहब ने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया, मतलब अभी ऐसा था या कुछ नहीं था। नहीं, ऋतिक रोशन का देखो ऐसे रहा है, ऋतिक रोशन का मैं फर्स्टली तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। नहीं, वैसे आपको लगता है अभी ऋतिक रोशन की अगर बात करें ना, मोस्ट हैंडसम वर्ल्ड पर्सन, और आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड भी उनको काउंट करते हैं उनमें से अगर जब बात होती है, और वो कंगना रनौत के साथ अफेयर करेंगे? आपको क्या लगता है, मेरे को बताइए। जो लड़का पहली फिल्म लेके आया तब सोशल मीडिया भी नहीं था, उसको 30,000 लेटर गए वैलेंटाइन डे पर कि हम मुझसे शादी कर लो, वो कंगना रनौत के साथ अफेयर में आएगा? देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, प्यार के लिए जो ट्रू लव होता है वो आपकी ट्रू लव होता कैसे, जब हम लोग किसी आउटर लुक को जाते हैं तो ये एक होता है अफेक्शन, एक अट्रैक्शन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऋतिक रोशन को उसके साथ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा ऋतिक रोशन को उनसे प्यार हुआ, मैं सिर्फ आपको प्यार की थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दे रहा था। ठीक है। तो नहीं, देखो प्यार व्यार का तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं उनके बारे में, बट येस एज़ पर दी कंगना रनौत उन्होंने बताया कि वो उनके साथ डेट कर रही थी, काफ़ी सारे उनके साथ प्रॉमिसेस हुए और उसके बाद से ऋतिक रोशन पीछे हटना शुरू हुए। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई, काफ़ी चीज़ें चलती गई, तो बाद में फिर ये सुनने में आया कि ऋतिक रोशन ने उनको डेफेमेशन का लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद ये मामला अभी तक शांत है। ठीक है। अब आपका इंटरव्यू से शायद हो जाए तो मतलब आप स्टोरी में ट्विस्ट ला के छोड़ोगे हैं। बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती गई, बट थैंकफुली अभी सारी चीज़ें मतलब उसके बाद वो उस पर कुछ हुआ नहीं। पिक्चर में एक और ट्विस्ट आता है सुशांत राजपूत, जो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे हंगामा रहा है। बॉलीवुड की असलियत को सामने लाया गया, पूरा का पूरा बॉलीवुड 2 भाग में बंट गया। कुछ एक बताया गया कि इसमें ऑलरेडी जो फैमिलीज़ हैं, जो बॉलीवुड फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, नेपोटिज़म का काफ़ी नाम लिया गया। तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री 2 भाग में बंट गई, जिसमें कंगना रनौत की एक बड़ी बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट आई थी। शायद उन्होंने ट्वीट किया था कि सुशांत राजपूत जो है उनका मर्डर हुआ है और वो उसकी काली सच्चाई को जानती हैं कहीं ना कहीं। पूरा का पूरा नेशनल मीडिया आप उस टाइम का देख लीजिए, कोई चैनल आप खोल लीजिए, कुछ भी, हर जगह वो चीज़ थी। एक बड़ा बॉलीवुड के लिए बड़ा काला समय कहूँगा मैं कि चीज़ें शुरू हो गई, और उसके बाद कंगना रनौत को आप कह सकते हैं हाईलाइट हो गई एकदम से, बिकॉज़ बहुत बड़ा मीडिया में उनका आप भागीदारी हुई उस स्टेटमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो गए, बोल्ड उन्होंने बोला कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि उन्होंने अपफ्रंट होके बताया। सच या झूठ के बारे में तो नहीं मैं जानता, बट अगर बातें मानी जाए तो सच में काफ़ी बड़ी एक आयरनी है बॉलीवुड की, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है। उसके बारे में नशे की आप देखेंगे चीज़ें सामने हुई और बताया गया किस तरह से मूवीज़ होती हैं, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, अलग अलग चीज़ें हुई। बट
अब जो रिसेंटली कंगना जी की जो स्टेटमेंट आई है फार्मर्स को लेके, उसने आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप फेसबुक खोल लीजिए, या फिर आप कोई और बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको कंगना मैम दिखेंगी। आप तो कह रहे हो कि अभी इनिशियल स्टेटमेंट आई है, मैं आपको 2-3 साल पहले पीछे ले जाना चाहता था जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। सिद्धू मूसेवाला का सिद्धू मूसेवाला को भी आप एक साइड में रख सकते हैं। मतलब उस वक्त भी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये लोग देश के गद्दार हैं, ये 100 रुपये लेकर जो औरतें हैं वो प्रोटेस्ट में जा रही हैं। मतलब आपका काम चल रहा है, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, आपका एक अच्छा रनिंग बिजनेस है, ठीक है, आप क्यों मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं उस चीज़ में जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है? नहीं, कम्प्लीटली एग्री विद यू कमल, बिकॉज मैं नहीं जानता कि वो किस बेस पे कह रही हैं, उनके जानकारी का क्या आधार है, कहाँ से उनको ये चीज़ें पता लगी हैं। बिकॉज यस, मुझे याद है कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट काफ़ी बार दी हैं, बट वो किस बेसिस पे कह रही हैं वो अभी तक उन्होंने कुछ क्लैरिटी इस पर दी नहीं है। जो मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो उनको बताना भी चाहिए कि उनको ये कहाँ से जानकारी मिली है, ताकि अगर वो सच बोल रही हैं तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट से विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट इंसान दे सकता है? देखो, पॉलिटिकल सपोर्ट का तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा कि क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, बट अगर आप उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखो, अब तक का इनका रिकॉर्ड रही है तो वो काफ़ी बोल्ड रही हैं शुरू से। मे बी सपोर्ट का तो नहीं मैं कह सकता, अगर वो इतनी स्टेटमेंट दे रही है तो उनकी इन्फॉर्मेशन का पक्का कोई ना कोई बेस होगा, कोई ना कोई आधार होगा जो उनको बताना चाहिए। अभी उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि आंदोलन में रेप होते थे ना, बीजेपी ने अपने लेटर हेड पे पोस्ट किया है कि हमारा इस चीज़ से कोई, दैट वाज वेरी शॉकिंग। ठीक है, तो अभी मैं यही जानना चाहता हूँ भाई, ये तो फिर आप ना एक लाइमलाइट लेना चाहते हैं इसीलिए आएंगे, उसके बाद आप पंजाब के, हरियाणा के किसानों को ये बात बोल रहे हैं। जब फिर आप पंजाब में आओगे तो आपको थप्पड़ पड़ेंगे, फिर जब उसको थप्पड़ पड़ा तो फिर उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दोगे, अगर कोई मेरे खिलाफ भी देगा, ये तो पर्सनली मैं अपने ऊपर ले गया, आप एक पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं बिना किसी बेस के, या तो प्रूफ दो ना वे ऐसे हुआ है, तो फिर आप कंगना रनौत का कोई भी होगी फिर तो वो थप्पड़ खाने का हकदार है। बिल्कुल कमल, मैं वही आपको चीज़ बोल रहा था कि अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं, देखो किसान आंदोलन की अगर बात करें, जो कि किसान आंदोलन को चला रहे थे लोग, उन्होंने उनके मुताबिक किसान आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चलाया गया, कोई इसके अंदर हिंसा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। बट ये सडनली, शायद मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना कि किसान आंदोलन में इस टाइप की ड्रास्टिक चीज़ें हुई है एज़ पर दी कंगना रनौत कि फीमेल्स के साथ इतना बुरा हुआ है ना, उसमें लोगों को मारा गया। तो ऐसा सुनने में वैसे पहली बार ही मैंने स्टेटमेंट सुनी है, बट येस, अगर ऐसा कुछ है तो विद फैक्ट एंड फिगर आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने किस बेस पे चीज़ बोली है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो, अगर बात सच है तो जस्टिफाई तो हो। विदाउट आप किसी जानकारी के आधार के इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के इनकी फिल्म रिलीज़ हो जाए? आप क्यों लोग करने देंगे? मैं कह रहा हूँ आपकी बात 100% मैं एग्री हूँ, क्या फैक्ट्स दो यार, इसके साथ रेप हुआ, इसने किया, आपके पास कोई बेस है तो उस पर कार्रवाई हो। मैं कहता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप फिर अभी कह रहे हो कि लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मेरी फिल्म को नहीं लगने देने जा रहे हैं, आप एक तरफ पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों आपको ऐसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। देखो, फिल्म और किसान आंदोलन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कनेक्ट तो करेंगे ऑब्वियसली। अब मुझे लगता है कि या तो उनके पास कोई ऐसी जानकारी है, उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस पे वो इतना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को क्लेम करती हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जानकारी होती है अकॉर्डिंग टू मी, पहले वो दिखाता है भी दिस इज द प्रूफ, देख लो, देखने अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है भी दिस इज द प्रूफ, उसके बाद बोलता है भी ये हुआ है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। अगर देखो, जिस हिसाब से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से वो उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहती है, वो ऐसा कहीं ना कहीं साउंड करती है कि उनके पास उनको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है ना। क्योंकि आप बता रहे हो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी के सामने, एक जो कि जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, देशभक्ति की आप बात करें या फिर आप देश की सेवा की बात करें, है ना, और किसान ने आप देखें, किसान भाई हमारे मतलब कि इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। ऑब्वियसली किसान हर जगह सेम है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या फिर देश का कोई और हिस्सा हो। तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी को बता रहे हैं, नॉट ओनली विद फार्मर्स, इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस थिंग
एनीबडी, इवन ए सिंगल पर्सन, तो आपको उसको क्लियर करना चाहिए कि बॉस ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन, आप बताओ। और आप इतनी, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत बढ़ जाती है बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर हैं। हाँ, एमपी भी अभी तो, और इतने बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे हैं, इतनी जिम्मेवारियाँ आप पे हैं, है ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आप पे बढ़ जाती हैं लोग। और ऊपर से आप एक स्टार हैं जिसकी ऑलरेडी पेट फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद उनका, वो आपका पर्सनल हम उसकी, तो उसमें मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, एक नज़रिया उनके प्रति इज्जत का हो जाता है कि आप उनको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं उस आर्टिस्ट को। बट इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, मुझे नहीं पता उनका क्या आधार रहा होगा, बट अगर वो ऐसा समझती हैं तो उनको इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। और अब देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनकी खुद की पार्टी ने अभी एक आई गेस नोटिस या फिर हाँ उन्होंने अपने खुद के लेटर हेड पे पब्लिक की है जानकारी कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, है ना। तो शायद क्योंकि उनकी पार्टी में ऑलरेडी इतने सीनियर लीडर्स हैं, चाहे आप नाम ले लीजिए, वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उनका एक सुझाव होगा कि आप ओपनली ऐसे किसी भी कम्युनिटी को मत बोलिए, है ना। तो सीखना चाहिए मुझे लगता है उन्हें उनसे, है ना, मतलब कि अपनी पार्टी के लोगों से जिन्होंने उनको इतने बड़े अपॉर्चुनिटी दी है पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट करने के लिए, तो उस चीज़ों को समझना चाहिए बस। बट यस, वो एक पब्लिक फिगर है, किसी की भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाना और विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जानकारी के, कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है उन सारी चीज़ों को देख के। नहीं, इन्होंने खुद ही टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था ना कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ड्रग्स एडिक्टेड हो गई थी ये ना। तो मेरे को लगता है उस चीज़ का भी थोड़ा रहता है कि नहीं, अभी शायद उन्होंने, आपने उनका एक रिसेंटली इंटरव्यू नहीं देखा, एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अभी पब्लिश भी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें याद नहीं है उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। फिर ये तो मेरे को लगता है अभी नहीं, वो पर्सनल टारगेट हो, देखो वो नहीं चाहता। देखो हमारी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है रजनीश जी, तो कोई अच्छा काम कर रहा है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहा है, छोटे गांव से निकल के इतना ऊंचा मुकाम उसने कहा है, इसकी अप्रिसिएशन बनती है, हम सब लोग करते हैं इसकी। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन मेरे को ये लगता है कि विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी नॉलेज, आप बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट करते रहोगे तो आप अपने प्रति नफरत ही पैदा कर रहे हो। अगर आप अभी आपका किसी के साथ है, मैं कहता हूँ आपको है उसके डाउट, आपको लगता है कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता, आओ यार ऑन द टेबल बैठो उसके साथ, यार हमको तुम्हारे से ये दिक्कत है, आपने ये किया है, आप हमारे देश का ये नुकसान कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे। पंजाब और हरियाणा के लोग कब देश के लिए पीछे हटे हैं आप भी जानते हैं। अगर हमारी हिस्ट्री को भी उठा के देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग, अगर 112 लोग शहीद हुए हैं तो उसमें 81 पंजाब के ही हैं। अगर आपके पास कोई फैक्ट है, अगर आपकी किसी के साथ कोई नाराज़गी है, आप कोई भी कम्युनिटी या कोई भी पर्सन पर्टिकुलर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि आपकी बात सुनेगा नहीं। आप बात सुनो आके, सारे किसान नहीं गलत हो सकते। मैं कहता हूँ अगर आप बोलो भी यार एक आदमी ने ऐसा किया, दो ने ऐसा किया, वो कितने ना कितने फिर भी हम सोच सकते हैं यार ऐसा हो सकता है। आप पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं। अगर आप इतने ही सही होते तो अगर इनका भी एक फील्ड है, इनकी बॉलीवुड की एक कम्युनिटी है, बॉलीवुड की भी कम्युनिटी इनके साथ तो है नहीं ना, किसी ने इनकी सपोर्ट नहीं किया है ना। और उसके अलावा अगर बात करें तो विशाल जी जो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि जिस लड़की ने, जिस अफसर ने इसका थप्पड़ मारा था कि मेरे पास आए उसको मैं खुद जॉब दूंगा। अगर ये इतने ही सही होते तो इनकी कम्युनिटी तो इनको सपोर्ट करती ना, किसान तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपका एक मुकाम होता है जनता में, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपका शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के होना चाहिए। बिकॉज़ जो आप बोल रहे हैं, मतलब आप ये चीज़ समझिए, जो आप बोल रहे हैं, आपका एक एक शब्द सामने वाले के लिए, आपके ऑडियंस के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको प्यार करेंगे तो वो आपको डबल इफेक्ट आएगा, अगर आप उससे नफरत करेंगे तो शायद डबल आपको इफेक्ट आएगा उस चीज़ का। Exactly. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी उनके साथ अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हुआ है कि उनको एक अधिकारी ने उनको स्लैप किया था, और आप देखो कि पूरे बॉलीवुड से कोई, मुझे नहीं लगता कि शायद उनके कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा हल्ला हुआ हो। इनफैक्ट विशाल ददलानी जो कि एक फेमस म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कंपोज़र हैं, उन्होंने इनफैक्ट
वो उस अधिकारी की सपोर्ट में है कि अगर उसको किसी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, किसी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने उनको जॉब ऑफ़र की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं कितना डिवाइड एंड रूल चीज़ें करती हैं, कितना इंडस्ट्री में फ्रैक्शन होती है इस चीज़ को लेके, कितना बैलेंस ख़त्म रहता है, बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो अब यही एग्जांपल आप किसान आंदोलन के टाइम में आप देख लीजिए, पूरा का पूरा बॉलीवुड, पूरा का पूरा बॉलीवुड आप दो धड़ल्लों में बंट गया था। एग्जैक्टली आप बड़े बड़े, आप मैं कह रहा हूँ किसी भी आप बड़े सिंगर का या फिर आप बड़े पंजाबी अदाकार का आप नाम ले लीजिए, चाहे उसमें दिलजीत दोसांझ हों, चाहे उसमें मनकीरत औलख हों, चाहे उसके अंदर और बड़े सिंगर हों, खुल के कितने सपोर्ट में आए थे और ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। और अगर आप बात बॉलीवुड की करते हैं तो आप बड़े चुनिंदा नाम थे जो इस किसान आंदोलन के अपोजिशन में थे। और आप देखिए बॉलीवुड पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसके सपोर्ट में आई थी, ठीक है। और वो सपोर्ट ऐसा नहीं था कोई बहुत हिंसक कदम इसमें उठे, बड़ा शांति पूर्वक ये इस आंदोलन को चलाया गया, बड़े प्यार से चलाया गया। आप देखिए सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि इसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हो कि कहीं भी लगता नहीं कहीं हिंसा की कोई खबर मिली हो, इक्का दुक्का मिली हो। देखो आप इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं तो उसके अंदर कहीं शरारती तत्व भी होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपको उन चीज़ों को वेरीफाई करना और उसको बेस बना के बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधूरी जानकारी हमेशा मैं कहूँगा कि ख़तरनाक होती है, और अधूरी जानकारी वैसी पर्सनैलिटी द्वारा दिए जाना जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, वो कहीं ना कहीं एक बॉम्ब विस्फोट वाला काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी रिलीज़ होनी चाहिए? देखो इमरजेंसी के बारे में अभी फिल्म के बारे में कुछ कहानी सामने नहीं आई। फिल्म का एक ट्रेलर है, फिल्म का ट्रेलर सामने आया और उस ट्रेलर पे इतना बड़ा बवाल हो गया। अब देखिए कहीं आप देखेंगे कहीं कम्युनिटी उनके अगेंस्ट हो गई हैं, और सेंसर ने भी कहीं ना कहीं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। फ़िलहाल के लिए वो मूवी होल्ड पे चलेगी है, ठीक है। तो सेंसर में मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़ी चीज़ें देखते हैं, है ना। और जो लोग प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची है। देखो फिल्में दो तरीके से काम करती हैं, एक तो इंटरटेनमेंट का और एक दूसरा जानकारी का। जानकारी बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव। इंटरटेनमेंट के साथ सही जानकारी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी मूवी के लिए। नहीं तो वो जैसे आप देखेंगे ना, अगर आपका सर दर्द हो रहा है, मतलब आप एक सही दवाई खाएंगे तो आपका सर दर्द ठीक होएगा, और अगर आप गलत दवाई खाएंगे तो आपका सर फट भी सकता है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि वैसे काम किया है कि सही मूवी का, और इतने बड़े इसमें अदाकार भूमिकाएं निभा रहे हैं, बड़ी बड़ी उसके अंदर पर्सनालिटी जुड़ी हुई है ना। कंगना रनौत का भी उनके अंदर काफ़ी नाम है, वो एक मेन लीड में रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा भी कई जिम्मेवारियाँ उन्होंने निभाई हैं उस मूवी में। तो मुझे लगता है कि सेंसर और जो सेंसर जो डिसीज़न ले रही है और जो लोग अपने इसके अगेंस्ट अपने विचार साझे कर रहे हैं, तो इन सब को मिला के एक अच्छी चीज़ ही आएंगी जो उसके अंदर आपत्तिजनक। बिकॉज देखो मूवी सेंसर ने देखी है, हम लोग सिर्फ एक ट्रेलर देखा, ट्रेलर में एक थोड़ी झलक उसमें दिखाई है जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ और अपने रिएक्शंस दिए हैं। तो सही डिसीज़न मुझे लगता है कि सेंसर सही लेगी। सेंसर एक न्यूट्रल बॉडी है, और फिल्म बाद में फिल्म में वो होते हैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फिल्म में इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए ताकि उससे लोगों को जानकारी पहुंचे इंटरटेनमेंट के साथ साथ। आपने ना अभी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, आपने एक बात की थी कि उसकी ज़िंदगी का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के किया गया था? एज ए फ़ैन नहीं मैं जानना चाहता, एज ए मतलब ना एक बात होती है भी, लोग कहते हैं ना भी यार बात होनी चाहिए हमारी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बात होनी चाहिए, हम सुर्खियों में बने रहें। भी कहीं उसको लगने लग गया था यार इससे मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, और नो डाउट मेरे को लगता है वो कामयाब भी होगी। ही इज़ नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी शी इज़। तो देखो जो आप चीज़ बोल रहे हैं, है ना, जो चीज़ आप बता रहे हैं, देखो उसके दो पहलू हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जब इनिशियल स्टेज पे उन्होंने उस टाइम भी काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी
शायद उनका अभिनय में या फिर उनका इंडस्ट्री में कद इतना बड़ा नहीं था। जब ये हल्ला गुल्ला होना शुरू हुआ, जब हंगामा हुआ, तब तक वो एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। ठीक है, तो जब कोई बड़ा स्टार कोई स्टेटमेंट देता है तो डेफिनेटली उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका एक इन्फ्लुएंस बन जाता है पूरी मार्केट में, तो उसके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगे इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ को लेकर। तो फिर ये कह सकते हैं ना प्री प्लान चीज़ भी हो सकती है। अब प्री प्लान देखो उनकी क्या चीज़ रही है, उसमें उनकी क्या मंशा रही होगी, क्या उनकी इंटेंशन रही होगी। एक एक्सपेरिमेंट आप अपनी लाइफ में भी करके देख लीजिए ना, किसी के साथ आप करके दीजिए, एक ट्वीट या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिए। अब इसमें देखो, इसमें कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस इंटेंशन से उन्होंने चीज़ें की हैं, बट यस, जब उन्होंने चीज़ें ट्वीट की, जब उन्होंने चीज़ें बताई, तब वो एक बड़ी पर्सनालिटी बन चुकी थी। और डेफिनेटली जिनके बारे में उन्होंने प्रतिक्रियाएं की, वो भी एक इंडस्ट्री के बड़े नाम थे, चाहे वो ऋतिक रोशन हो या फिर कोई और बड़े लोग हों, तो उसे बवाल होना तो बनता था। करण जौहर को भी उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया है कि भी मतलब वो नेपोटिज्म करते हैं, मतलब स्टार किड्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना। गिप्पी गरेवाल से एक और क्वेश्चन किया गया था, कहते भी लोग कहते हैं भी नेपोटिज्म बहुत हो गई है, भी अपने लड़कों की चांस देते हैं। मेरे को उनका आंसर बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने पंजाबी जवाब देता ਸੀ, कहते भी मैं ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਬਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇ ਜਿੰਨੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ये सेम स्टेटमेंट आई गेस सुनील शेट्टी साहब ने भी दी थी। हाँ, मैंने तो गिप्पी गरेवाल तो सुनी थी कि हमने बहुत मेहनत की है और किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्प करना गलत नहीं है। हाँ एग्जैक्ट। देखो नेपोटिज्म, देखो कोई भी चीज़ जब मुझे ऐसा लगता है ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएगी जी। देखो आपको किसी भी चीज़ का फ़ायदा होता है जी, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई तीसरा बंदा है, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि जिससे तीसरे आदमी का नुकसान हो रहा है, डैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। बट अगर मेरी हेल्प से आपका फ़ायदा हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आपको देखो नुकसान करना एक अलग चीज़ है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, है ना, आप उसमें एक चीज़ करें, तो वो प्रोडक्ट आपका खुद का है और आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, है ना, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें सही है। बट यस, जो टैलेंट है उसको एक सही मुकाम मिलना, एक सही रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रजनीश जी, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारे एडिटर सामने ही बैठे हैं। उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि इसको भाई इतना ही रखना, भी टाइम नहीं, कंगना नाम ही ऐसा, हम 1 घंटा और भी बात कर सकते हैं। मेरे ना वो बात मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, चलो छोड़ो, क्या बातें करनी है। कोई वैसे कुछ रह गया हो कुछ बोलने के लिए तो आपके कुछ माइंड में हो यार इस बात पे डिस्कस करना है, तो वो हम कर सकते हैं। नहीं ठीक है, ऐसे आप देखो कि टाइम टू टाइम ऐसे लोग आए हैं और देखो कुछ लोग होते सुर्खियों में रहने के लिए हैं। अभी एक खतरनाक क्वेश्चन लास्ट में पूछ जाऊँ फिर जाते जाते, अगर आपने आंसर देना है तो बताइए। पक्की बात है? बताओ। जिस तरह से कंगना रनौत चल रही है, ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, वो किसी की बेटी है, लड़की है, भी कल को वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। क्योंकि कब तक आप ना कहते हैं भी किसी को टॉर्चर करते रहोगे सर, टॉर्चर करते रहोगे, एक दिन आदमी देखो आपकी क्रिटिसाइज में मुझे लगता है कंगना रनौत के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न है। आपके लास्ट क्वेश्चन ये चीज़ बताई जी, मतलब आप भी कहीं ना कहीं कंगना की फिक्र तो करते हैं, मुझे ऐसे नहीं फिक्र मैं एज ए मतलब जैसे आपने स्टार्ट नहीं आपका कंसर्न दिख रहा है कि मतलब कि कंगना को बड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कंगना, कोई भी पर्सन है, मेरे को लगता है भी वो कहते हैं ना भी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक बर्ड हो, एक आदमी मर गया, 2 आदमी मर गया या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया 3 लोगों के, लेकिन आप अपने परिवार की तो सारी दुनिया ही हो ना। एंड ऑफ द डे सफ़र फैमिली ही करती है। मतलब जिस दिन हिटलर भी मरा था दुनिया के लिए, तो वो मतलब चाहे शैतान था कुछ भी था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके घर वालों को भी दुख तो हुआ ही होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ भी इतना नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कंगना, कोई भी हो, मैं पर्सनल अपने ऊपर भी लेता हूँ, आपके ऊपर भी लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी फेम चाहिए या कुछ चाहिए करिए, पर इतना किसी आप इंसान को टॉर्चर मत करिए कि आपके लिए वो दिक्कत बन जाए। मेरी जो स्लैब निकली है वो उसी टॉर्चर में निकली है, आप इस बात से एग्री करोगे? देखो बात तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं शायद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बड़ा क्लियर है, मुझे ऐसे लग रहा है चीज़ों का। बट यस, वही चीज़ है कि आप एक
एक बड़ा नाम है, आप एक पब्लिक फिगर है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके लिए भी अच्छा हो और आपके दर्शकों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए भी अच्छा हो। तो मुझे लगता है काफ़ी डिस्कशन होगी इस चीज़ के बारे में और बड़ा मज़ा आया कमल के साथ बात करके। कई दिनों बाद इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं और करते रहेंगे सर, ऐसे कोई बात नहीं। तो रजनी सर थैंक यू सो मच और अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीज आर आवर ओपिनियंस। ये रजनीश जी की अपनी ओपिनियन है, ये मेरे ओपिनियन है। शायद इससे बहुत सारी दुनिया एग्री करेगी और नहीं भी करेगी, लेकिन वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर कंगना रनौत जी को हक है कुछ भी बोलने का तो हमें भी तो होना चाहिए ना, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखें। बिल्कुल, और अपने प्लीज़ अपने व्यूज़ आप शेयर करो, आपके क्या थॉट हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब आपको अकॉर्डिंग टू जितनी का हमें समझ है उस अकॉर्डिंग। हम ये नहीं कहते कि हम जो बोल रहे हैं वो सही ही है या गलत ही है, मतलब हमारा ओपिनियन ये है, हम ये कहना चाहते हैं। चैट ऑन कैंप की टीम ये कहना चाहती है, रेस्ट अपॉन यू। सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।